A very good morning to all students. Once again, we are discussing a very important topic of the chapter 2, that is in principle of management. So let's we discuss about the scientific management developed by F.W. Taylor. Okay, so after completing the 14 principle of management which are developed by Henry Fayol, now we are discussing about the principle and techniques of scientific management. So let's we start the today's video. Management developed by F.W. Taylor. So first of all, to understand the scientific management and the scientific principle, scientific techniques which are developed by F.W. Taylor, we discuss the background and history of F.W. Taylor, what are the contribution of F.W. Taylor in the field of management, and thereafter we will discuss about the scientific principle and scientific techniques developed by Frederick Winslow Taylor. So who's Taylor? Frederick Winslow Taylor was an American engineer who responded to the challenges of management. He was the first person who insisted on the introduction of scientific method of management. That is why he is regarded as a father of scientific management. He started his career from Midway Steel Company in USA as a laborer and ultimately rose to the position of chief engineer in the same company within a short span of 6 years. In 1903, he published paper titled Shop Management, very popular paper, Shop Management. In 1991, his book Principle of Scientific Management created ripples in the field of the management. He made the following scientific contribution to the management thoughts. First, principle of scientific management. He developed the principle of scientific management जिसे हमें पढ़ना है. Techniques of scientific management. Taylor developed various techniques of scientific management through various experiments. He also emphasized on the adoption of scientific method to the problems of management. And number 3, he is also talking about the ideal wages system to the workers who works in the factory, which is also known as the differential piece phase rate system. Okay, so what is scientific management? Scientific management means application of scientific method to the problems of management. It is an art of knowing exactly what you want men to do, seeing it what they do in its best and cheapest way, and involves studying each activity in the detail, and in doing so ensure that all the activities of the organization are accomplished in an or economic and effective manner. So basically scientific management का मतलब होता है कि इस मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड को यूज़ करना. ये एक आर्ट है जिससे हम ये एग्जैक्टली पता करते हैं व्हाट यू वांट मैन टू डू, मैन को क्या करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि वो उस काम को बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग ईच एक्टिविटी इन डिटेल, और हर ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क्स हैं उसको डिटेल में स्टडी करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अकम्प्लाइज्ड एंड इन इकोनॉमिक, मतलब वो काम पूरे हो रहे हैं इकोनॉमिक वे में और इफेक्टिव मैनर में. एंड द डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोली exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. F.W. टेलर का कहना ये कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब है ये देखना कि मैन क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि वो उस काम को बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा जोन्स ने, पीटर ट्रकर ने और एसोसिएशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर यूएसए ने, हार्लो पर्सन्स ने बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई, तो उसको आप लोग डिस्कस कर लेना, पढ़ लेना. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो हेनरी फेयोल की तरह ही F.W. टेलर ने भी मैनेजमेंट को साइंटिफिकली करने के लिए कुछ प्रिंसिपल या कुछ पिलर डिसाइड किए कि अगर हम इस पिलर पे सही साबित हो जाते हैं, इस पिलर पे खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब जो हमने मैनेजमेंट किया है वो साइंटिफिक वे में मैनेजमेंट किया है. साइंटिफिक वे में मैनेजमेंट करना मतलब कि हमने साइंटिफिक रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल, कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप सब पे वर्क किया.
So what is the first principle of scientific management? Science, not rule of thumb. Okay, according to this principle, Taylor suggested that work assigned to any employee should be observed, analyzed with respect to each and every element and the part and time involved in it. This means replacement of old rules of thumb and hit and miss method. The decisions are made on the basis of facts and by the application of scientific decision. यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है उसमें कहता है कि साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब. साइंस जो है वो ये बोलता है कि कोई भी काम असाइन करने से पहले एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए किस रिस्पेक्ट में, उस वर्क के हर एक एलिमेंट को डिस्कस करना चाहिए. ठीक है, कि जस्ट सिंपल सी बात, दिस प्रिंसिपल कैन बी यूटिलाइज द फॉलोइंग पर्पस टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब. उस जॉब को करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगेगा. टू डिटरमाइन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, उस काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है. टू डिटरमाइन द फेयर डे वर्क्स ऑफ द वर्कमैन, उस काम को करने के लिए जो वर्कर्स को जो पैसा देना होगा वो कितना फेयर डे वर्क्स, एक या आपसे भी कह सकते हो एक दिन में कितना काम कर सकता है एक वर्कमैन. एंड टू सी वर्क स्टैंडर्ड, एक काम को पूरा करने का स्टैंडर्ड क्या है कि हम कब मानेंगे काम कंप्लीट मान लिया गया है. इन rule of the thumb, the standard time required to do a particular job is decided by the manager as per their personal judgment. रूल ऑफ थंब में ये भी कहा गया है कि रूल ऑफ थंब में क्या होता था बेसिकली, जो हम किसी भी जॉब को कंप्लीट करने का टाइम डिसाइड करते थे मैनेजर क्या करते थे, अब पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर डिसाइड करते थे कि ये काम 8 घंटे में हो जाएगा, 4 घंटे में हो जाएगा. बट टेलर इंसिस्ट दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब शुड बी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक इंक्वायरी. अगर आप किसी जॉब के लिए स्टैंडर्ड टाइम तय कर रहे हो कि ये काम, ये वर्क इस स्टैंडर्ड टाइम में पूरा हो जाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे नहीं हो सकता. उसके लिए हमें साइंटिफिक इंक्वायरी करनी ज़रूरी है और स्टैंडर्ड आउटपुट भी डिटरमाइन करना चाहिए कि इतने घंटे में इतना आउटपुट स्टैंडर्ड माना जाएगा. इससे अबव है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, इससे बिलो है तो आपको लोअर. तो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब का मैंने मतलब है कि हमें पर्सनल जजमेंट हिट एंड मिस मेथड पे वर्क नहीं करना चाहिए. वी आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिफिक इंक्वायरी एंड उस साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वी हैव टू डिसाइड अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब एंड स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. दिस इज द फर्स्ट रूल of scientific management, first principle. The second is a harmony not discord. Basically what is harmony not discord principle, scientific principle management? So basically according to this principle, Taylor emphasizes that harmony rather than discord should be attained in the group action. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेलर ने कहा कि हारमोनी रेदर देन डिस्कॉर्ड शुड बी ऑब्टेन बाय ग्रुप. यानी ग्रुप में हारमोनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कॉर्डिंग. हारमोनी मतलब मिला के रखना, कोऑर्डिनेशन, एंड डिस्कॉर्ड मतलब होता है डांटना या फिर अलग रखना. हारमोनी मीन्स द ग्रुप शुड वर्क एज अ यूनिट. हारमोनी का मतलब होता है कि ग्रुप को एक यूनिट की तरह काम करना चाहिए. कॉन्ट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम, और टोटल में मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे आर टू ग्रुप. यू नो वेरी वेल, एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप होते हैं, वर्कर्स ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप. वर्कर्स ऑलवेज फील दैट दे आर अंडरपेड एंड ओवरबर्डन, while management feel that the workers are good for nothing. The atmosphere of the hostility and suspicion should be replaced by an atmosphere of mutual trust and cooperation between workers and employers. It requires a complete change in the attitude of the workers and management towards one another from competition to cooperation. यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, न कि कॉम्पिटिशन होना चाहिए. क्योंकि आपको पता है दोनों ग्रुप एक दूसरे के बारे में नेगेटिव थिंकिंग रहते हैं. सो वी विल रिमूव सच काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स. इट रिक्वायर्स अ कंप्लीट चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कॉपरेशन. टेलर ने इसे क्या कहा है, इट इज़ कॉल्ड मेंटल रिवॉल्यूशन. विदाउट रिवॉल्यूशनरी चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द वर्कर एंड द मैनेजमेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट. अगर हम ये एटीट्यूड चेंज नहीं कर पाएंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक मैनेजमेंट हम अप्लाई नहीं कर सकते. Taylor called upon the management and the worker to cooperate with each other to attain maximum output. Maximum output चाहिए तो हमें ये सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा. थर्ड है cooperation not individualism की बात हुई है. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क
मस्ट बी कैरिड ऑन इन कॉपरेशन विथ ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके आगे बढ़ना है. With mutual confidence and understanding from each other, it is only through cooperation that the goals of the organization can be achieved efficiently. Workers' participation in management at the time of the goal setting must be introduced. It will lead to increase the efficiency and the performance of the workers as they will try their best to attain the desired level of output. Taylor suggests substitution of war for peace, hearty and brotherly cooperation for contention and strife, replacement of suspicious watchfulness with mutual confidence of becoming friends instead of enemies. कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का कहना ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें जब काम करना है तो हमें एक दूसरे के साथ कॉपरेशन बना के रखना चाहिए, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बना के चलना चाहिए, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बना के चलना चाहिए. ये ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क हम चीज़ें अटेंड करते हैं, इट इज़ ओनली थ्रू कॉपरेशन विद दैट द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन. एक कॉपरेशन एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो सिर्फ और सिर्फ कॉपरेशन से ही पूरा किया जा सकता है. वर्कर का पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है, उनको इनिशिएट करना चाहिए, उनके सजेशन को हमें क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है फोर्थ, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दे आर बेसिकली 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. 4 प्रिंसिपल हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के. इसमें पहला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी. फर्स्ट था साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब, सेकंड हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल. कॉपरेशन की बात होती है, इंडिविजुअलिटी की बात नहीं होती. नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. In order to maximize production, all possible efforts are made to increase the efficiency of the worker, which directly depends upon the proper training and development. इसमें होता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. हमें वर्कर को इस लेवल पे डेवलप कर देना है कि उसकी एफिशिएंसी उसके ग्रेटेस्ट लेवल पे हो और जो प्रोडक्शन है वो प्रॉस्पर पे हो. प्रॉस्पर मतलब सबसे टॉप पे हो. तो अगर इस पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं. इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल एफर्ट्स are made to increase the efficiency of the worker, which directly depend on the proper training and selection. Taylor suggested that the workers should be selected on the basis of their educational background, work experience, physical strength. In addition, proper training should be given according to their capabilities and nature of work. It will automatically lead to the increase in efficiency and growth of the company and its employee. यानी कह रहा है कि अगर हमें प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो हम और वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो ये सिर्फ डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, ट्रेनिंग पे और सिलेक्शन पे. हम ऐसे पर्सन को सेलेक्ट करें जो उस काम के लिए योग्य हो और ट्रेन भी दें. टेलर ने ये भी कहा है कि वर्कर को हमें सेलेक्ट करना चाहिए उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे, और उसके साथ उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी दें ताकि उनकी कैपेबिलिटीज़ और उनका नेचर ऑफ वर्क भी को वो समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग अपनी कैपेबिलिटी डेवलप कर सकें. ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, खासतौर से न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ वेरी बेनिफिशियल. ओके, सो दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. दैट इज़ एन साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individualism, and development of worker to their greatest efficiency and prosperity. अगर हम इन चारों प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने मैनेजमेंट को साइंटिफिक वे में अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. So that is an next point is scientific techniques of Taylor. Taylor developed some scientific techniques by conducting various experiments at his workplace. And before starting this principle, let's discuss about it. You know very well, scientific principle is the base for the management of the organization by the scientifically. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें साइंटिफिक वे में मैनेज करना है तो वी हैव टू फॉलो द साइंटिफिक प्रिंसिपल. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द टेक्निक्स, कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की टेक्निक को अडॉप्ट करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन में काम भी पूरा हो जाए और चीज़ों को हम अच्छे से पूरा भी कर सकें, मतलब साइंटिफिकली, मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल के साथ साथ हमें साइंटिफिक टेक्निक को भी अडॉप्ट करना चाहिए ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो कर सके.
सो इसी के लिए टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल के साथ साथ साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप की है, जैसे कि फंक्शनल फोरमैनशिप। नंबर वन इज़ अ फंक्शनल फोरमैनशिप। सेकेंड डेवलप किया है उन्होंने, द सेकेंड विल बी अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। The full form of the second technique is standardization of work and simplification of work. Third is work study, and in the work study he is talking about the different thing like method study, fatigue study and time study and motion study। यानी वर्क स्टडी के ही सारे पार्ट हैं, टाइम मोशन एंड फैटिग्यू एंड मैथड। तो आप याद रखना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्क स्टडी, मैथड स्टडी, फैटिग्यू स्टडी और टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। एंड लास्ट वन विल बी अ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बहुत ही फेमस वे में ये साइंटिफिक ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम डेवलप किया है, जिसकी हेल्प से हम ईजिली क्या कर सकते हैं, ये स्टडी कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉय है और अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉय है, उनके सैलरीज में, उनके वेजेस में, उनके रेम्युनरेशन में हम कैसे डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ scientific techniques। These are the 4 important scientific techniques which are developed by F.W. टेलर। उसके बाद हमें डिस्कस करना है हेनरी फ्योल और टेलर के जो व्यूज़ हैं, जो उनके कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ द मैनेजमेंट, उनके बीच में कंपैरिजन डिस्कस करना है। ओके, so the first scientific techniques of Taylor will be a functional foremanship. According to functional foremanship, Taylor suggested the techniques of functional foremanship in order to improve the quality of supervision and control of work. Under this scheme, the task of supervision is divided into several specialized functions, and each function is entrusted to a specialist foreman. Taylor stressed that every foreman must be educated, energetic, honest, specialized and intelligent. But all these qualities cannot be present in one supervisor. Therefore, he suggested 8 functional foremen to supervise employee। यानी फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर ने सजेस्ट किया कि एक फैक्ट्री वर्क प्लेस पे हमें स्पेशलाइजेशन को मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट को बनाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि सारी क्वालिटी और हॉनेस्टी, स्पेशलाइजेशन, इंटेलिजेंसी एक ही पर्सन में नहीं हो सकती, इसलिए इन सारी क्वालिटीज़ के लिए एक सुपीरियर होना भी पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने 8 फंक्शनल फोरमैन डिसाइड किए जो कि किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। एंड द 8 अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप, planning and operations are separated. Each worker will have to take order from 8 foremen, and as a result his efficiency will improve. And the 8 functional experts suggested by Taylor are: the first will be a route clerk, which are covered under the planning department. So basically the first 2 departments will be created under the functional foremanship, planning department and production department. Under the planning department, the first will be a route clerk, second will be an instruction card clerk, third will be a time and cost clerk, and fourth will be a disciplinarian. So according to the route clerk, what is the role of the route clerk under the planning department? He plans the sequence of operation and instruct the worker about it. About an instruction card clerk, he prepared detailed instruction to the workers regarding different aspects of work, such as spatial tools to be used, techniques, and the number of operation and proper speed to be maintained. And number 3 is a time and cost clerk. He maintained all records relating to the workers, such as time devoted to the different jobs, their pay and allowances. He also maintained cost records. And disciplinarian, he maintains discipline in the department and deals with the cases of breach of discipline and absenteeism. So under the planning department, the 4 main functional experts will be decided.
रूट क्लर्क का काम होगा जो ये बात डिसाइड करेगा, प्लान करेगा कि काम करने का सीक्वेंस क्या होगा, वर्कर को इंस्ट्रक्शन देना। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम होगा डिटेल इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करना वर्कर्स को, ताकि वो सारे पर्सन्स क्या हो सकें, किसी भी काम को करने के लिए प्रॉपर स्पीड मेंटेन कर सकें। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क में ये डिसाइड करना कि किसी काम को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए और क्या पेमेंट पे करना चाहिए। एंड डिसिप्लिनरियम में हम ये डिसाइड करते हैं डिसिप्लिन इन द डिपार्टमेंट एंड डील विद द केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन इन डिसिप्लिन, ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन एंड एब्सेंटिज्म, कि अगर कोई पर्सन्स वर्कर्स रेगुलर एब्सेंट होता है या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करता है, तो सिचुएशन में हम कैसे डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं। एंड इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। सो उन्होंने बताया कि अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्पीड बॉस इंश्योर दैट ऑल द वर्कर आर परफॉर्मिंग एट देयर जॉब एट द रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड स्पीड. If it is not so, the speed boss tries to find out the cases of slow speed and hence find a solution for it. Gang boss, he is to assemble and set up tools and machines and ensure that the workers make all their personal motions in the quickest and best way. And in the repair boss, he is responsible for the repair of the machinery and he ensures that the workers make all their personal motions in the quickest and best way. And an inspector, he inspects the work done by the workers and demonstrate to the workers to ensure that quality of the product is being maintained. यानी अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो स्पीड बॉस का काम होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम को करने की जो प्रॉपर स्पीड है, रिक्वायर्ड या एक्सपेक्टेड स्पीड है, वो बनी रहे, और अगर वो स्पीड नहीं होती तो बॉस को ये ट्राई करे कि उस प्रॉब्लम को ढूंढा जाए जिसका स्पीड स्लो है और उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए। गैंग बॉस का काम है कि टूल एंड मशीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए यूज़ की जा रही हैं वो प्रॉपरली असेंबल्स हों और उनका क्विक क्या हो, यूज़ हो सके। रिपेयर बॉस का काम मतलब ये है कि मशीन्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्केबल नेचर में होनी चाहिए, यानी प्रॉपर उनका रिपेयरिंग होना चाहिए। और इंस्पेक्टर का काम होता है इंस्पेक्ट वर्क डन बाय द वर्क एंड डेमोन्स्ट्रेट टू द वर्कर टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब वो देखना कि जो काम किए जा रहे हैं वर्कर के थ्रू वो क्वालिटेटिव हैं कि नहीं है। क्वांटिटेटिव पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्वालिटेटिव की चीज़ों पे भी हमें फोकस करना है। नेक्स्ट द सेकेंड जो है आपका टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसको डिस्कस करने पहले प्लीज़ सी दिस डायग्राम इन योर स्क्रीन। सो अकॉर्डिंग टू द FW Taylor, the whole organization will be divided into the two departments, planning and production department is also known as the operating department. And in the planning department, the 4 specialists will be appointed: route clerk, instruction card clerk, time and cost clerk, and disciplinarian. And in the production department, we also appoint the 4 specialists: speed boss, gang boss, repair boss, inspector, and they all supervise, instruct to the workers. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत अवॉइड होती है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, दैट इज़ एन यूनिटी ऑफ कमांड जो है यहाँ पे वॉयलेट होता है। सो हेनरी फ्यूल का एक बहुत ही पॉपुलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, दैट इज़ एन यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक वर्कर को एक सबॉर्डिनेट को किसी एक ही सुपीरियर का क्या मिलना चाहिए, इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए। बट हेनरी फ्यूल का ये मानना है कि हर पर्सन हर काम को लेकर वो स्पेशलिस्ट नहीं होता, तो हर स्पेशलिस्ट का वर्क के लिए, हर स्पेसिफिक वर्क के लिए हमें एक स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करना ज़रूरी होता है। इसलिए उन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड को ज़्यादा वैल्यू ना देते हुए फंक्शनल फोरमैन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। सो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। लेट्स वी मूव टू द सेकंड टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज एन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बेसिकली ये नोट्स में दोनों अलग दिया हुआ है, बट हम लोग वी आर टॉकिंग ऑल दीज थिंग्स इन द combined form. So what is standardization means? Standardization of work means setting a standard for the different factor. In simple words, standards should be maintained in respect of the tools and instrument, material, working condition and methods. The standardization of output is possible if standard is maintained from base level. Standards are set on the basis of the cost, time, motion, fatigue. Every modern techniques such as
Kaizen, Six Sigma can use to set up a standard. According to Taylor, maximum objective of the business can be achieved only when the raw material, labor, machines, equipment, methods and techniques are standardized and predetermined so that nothing could be left to trial and error. Following are the important forms of standardization. First is standardization of product and second is standardization of machine and equipment. The standardization of product must be based on the need, taste of customer. In order to make a standardized product, weight, quality, type, design, size of the product must have uniformity. So standardization का मतलब होता है कि हमें डिफरेंट फैक्टर्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म देना, चाहे वो टूल्स के रिगार्डिंग हो, इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो मटेरियल के रिगार्डिंग हो, चाहे वो वर्किंग कंडीशन एंड मेथड्स को लेकर, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. तब हम जाकर एक स्टैंडर्डाइज्ड इन्वायरमेंट डेवलप कर सकते हैं इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. सो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करना चाहिए. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट वो बेस्ड होता है कस्टमर की नीड एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग. और अगर हमें किसी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को बनाना है तो उसके वेट, क्वालिटी, टाइप, डिज़ाइन, साइज़ को देखकर हम उसमें यूनिफॉर्मिटी लाकर उसको स्टैंडर्डाइज बना सकते हैं. और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, इट इंश्योर दैट दे आर ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड टाइप टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड फिनिश गुड्स. मतलब किसी भी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने के लिए, डिज़ायर्ड या स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास स्टैंडर्डाइज मशीन्स एंड इक्विपमेंट भी होनी चाहिए. हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड्स मशीन्स नहीं होंगी तो हम स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट भी डेवलप नहीं कर सकते. ओके, सो दिस इज एन स्टैंडर्डाइजेशन. एंड व्हाट इज़ अ सिंप्लीफिकेशन, ये इसी के साथ देख लीजिए. सिंप्लीफिकेशन रेफर्स टू पुटिंग एन एंड टू एन अननेसेसरी टाइप्स, वेट्स, क्वालिटी, साइज. For example, it is appropriate for a shirt manufacturing company to manufacture shirt 36, 38, 40, 42. But if it is start manufacturing shirt 37, 39, 41, 43, it would require more types of the machinery, more inventory. So in order to simplify the task, unnecessary diversity of product, size and types must be eliminated. It will automatically results in economy in operation and improvement in quality. Simplification of work मतलब होता है किसी काम को simplify करना किसी भी फेज में. स्टैंडर्डाइज का मतलब ये होता है कि हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी लाने में उसके वेट, टाइप, क्वालिटी, इंटीग्रेंट्स, सब चीज़ में यूनिफॉर्मिटी लाते हैं ताकि वो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज बने. सिंप्लीफिकेशन में वी आर फॉलो अबाउट डी, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिंप्लीफिकेशन. मतलब जो इनएप्रोप्रिएट स्टेप्स हैं, जो इनएप्रोप्रिएट चीज़ें हैं, हमें उसको सिंप्लीफाई करना. एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन मीन्स मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क किए जा रहे हैं उसमें जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं, जो अनप्रोडक्टिव वर्क्स हैं, उनको एलिमिनेट कर देना. और जैसे इसमें एक बहुत बेसिक का एग्जांपल दिया है कि अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, साइज़ का स्टैंडर्ड क्या है कि क्लॉथ कंपनी किस नंबर की टी शर्ट प्रोड्यूस करती है, 38, 36, 14, 42. वो 37, 39, 41, 43 नहीं करती. क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर हम इस सारे टी शर्ट्स भी क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमें ज़्यादा इन्वेंट्री, ज़्यादा मशीन, ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि अननेसेसरी है. 36, 38, 14, 42 इज़ द मोस्ट कॉमन नंबर बाय विच द पर्सन्स यूज्ड. So this is a standardization and simplification of the work which the scientific technique given by the F.W. Taylor. F.W. Taylor ने कहा है कि हमें किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले उसके स्टैंडर्ड पे फोकस करना चाहिए और उसके जो स्टैंडर्ड है उसमें सिंप्लीफिकेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए. ओके, एंड द नेक्स्ट विल इज ए वर्क स्टडी. एंड यू नो वेरी वेल कि वर्क स्टडी में वी आर टॉकिंग अबाउट दी few of the important study, that is a method study, fatigue study and motion study, time study. तो ये बहुत छोटे सा टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं. किसी भी वर्क को बेसिकली किसी भी वर्क को एनालाइज करने से पहले, उसको एक्सप्लेन करने से पहले, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर टू स्टडी सच वर्क इन अ डिटेल. जैसे पहला है डिटेल मेथड स्टडी. इसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं इट इज़ कंडक्टेड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दी वन बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब सो डैट द कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड. हम एक ऐसे मेथड को फाइंड आउट करें ताकि उस प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज्ड हो जाए. ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन द गोडाउन एंड एक्चुअल प्लेस ऑफ प्रोडक्शन
and the go down must be kept minimum in order to avoid unnecessary wastage of time and money in transportation. यानी जिस जगह पे हमें प्रोडक्शन करना है उसके पास में ही वेयर हाउसेज भी होने चाहिए. फैटिग्यू स्टडी, it helps in setting the time interval and frequency of rest period in completing a task. इस किसी टास्क को कंप्लीट करने से पहले हमें ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि एक पर्सन को कितने टाइम इंटरवल की ज़रूरत है, कितना फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट पीरियड, कितने बार उसे की ज़रूरत है ताकि वो हमेशा रिफ्रेश्ड है. क्योंकि इफ़ द वर्कर कंटिन्यू, एग्जाम्पल में देखिएगा, इफ़ द वर्कर कंटिन्यूज टू वर्क इन द 2 or 3 consecutive शिफ्ट, ही विल फील टोटली एग्जॉस्टेड और उसकी जो एफिशिएंसी है इफेक्टिवली वो भी इफेक्ट होती है, हम उसे कितना भी काम करा लें. और टाइम स्टडी में द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. Standard time is defined as a time that an average worker required to complete a particular activity during a normal condition. मतलब टाइम स्टडी हमें ये भी ध्यान रखना है कि किसी काम को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या है, कितने टाइम में वो वर्क कंप्लीट होना चाहिए. और वो स्टैंडर्ड टाइम ऐसा नहीं कि आप रूल ऑफ थंब पे डिसाइड हो जाए कि बोल दिए घंटे में हो जाना है, 1 घंटे नहीं हो सकता. उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना चाहिए और वो स्टैंडर्ड टाइम हमें देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उसमें एवरेज वर्कर उस काम को करने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं. मोशन स्टडी में भी हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इट इन्वॉल्व्स थ्रू एनालाइज ऑफ वेरियस मूवमेंट्स, प्रोडक्टिव मूवमेंट्स एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट. और ये भी ध्यान रखना चाहिए किसी काम को करने के लिए कितने प्रोडक्टिव मूवमेंट हैं, कितना अनप्रोडक्टिव है, कितने इंसिडेंटल है. प्रोडक्टिव मतलब जिस काम को करने से हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहा है, अनप्रोडक्टिव मतलब जिसको कोई मिल नहीं रहा, और इंसिडेंटल मतलब जो काम इंसिडेंटल हो रहे हैं जो किए जा सकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग ध्यान में रखना चाहिए. तो ये वर्क स्टडी का बेस थीम है कि हाउ वी विल फाइंड आउट दी detailed investigation of the particular work with the help of the time study, fatigue study, motion study and method study. Okay, so in today's video इतना ही. Thank you, take care, bye bye.